Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Jessica Singh and I'm preparing for UPSC Civil Services Examination 2027 and it will be my second attempt. So in today's video, we are going to be talking about my experience, my first week's experience of the Show Up Challenge. And if you're new to this video, then I'm having a challenge which is known as the Show Up Challenge, wherein I'll be showing up every single day, no matter what mood, I'll be showing up every day. So yeah, I'm going to be sharing with you guys my experience of this challenge, and I have written down on my whiteboard all the things that I have to discuss in this video. So first is about my experience, second is about the updates for day 5 and day 6, the changes I see in myself, my mood and all of those things, and my so basically I also want to talk and also the habits that I've adopted, and one Instagram reel that actually made some difference in my today's study. So yeah, without further ado, let's get started with the video. Number one is how has been my week. So basically, I was never a consistent person, like Jessica and consistent, never. आई डोंट नो हाउ बट लाइक जितनी भी पढ़ाई मेरी आज तक लाइफ में रही है वो सिर्फ एनर्जी बर्स्ट्स पे रही है कि हाँ, जब एनर्जी मोटिवेशन है तब तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई और एग्ज़ाम से पहले कंसिस्टेंसी है रहती है, पर जब मोटिवेशन नहीं है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का एंड ऑल ऑफ दैट, तब कैसे पढ़ना है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क था जो मुझे मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में भी समझ नहीं आया है. बट आई थिंक नाउ आई डू अंडरस्टैंड इट. आई थिंक इट कम्स विद मैच्योरिटी and yeah, that's how you understand it. So basically, initially I did face some challenges. First 2 days were fine, and then after that the third day dip was there, and एक एक चीज़ को उठाएंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक है. तो ये मेरा प्लान है ऑफ दिस होल चैलेंज. ये वीक्स में रहेगा, वीक्स के कुछ मिनी टारगेट्स रहेंगे जो मैं आके बताऊंगी, एंड हम एक वीक में बस एक ही चीज़ पे काम करेंगे, ठीक है. नाउ बिफोर दैट मैंने कल भी ये बात बोली है दैट प्रोडक्टिविटी अलोन डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ आवर्स यू आर पुटिंग इन, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ दोज आवर्स एंड द अमाउंट ऑफ tasks that you've completed in those hours. So that is what productivity is. Now I'll not jump into the point of setting realistic targets, but usse pehle I'll be talking about the changes I've seen in myself. फर्स्ट डेज़ वर वेरी 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 डिफ़िकल्ट फॉर मी. मतलब मुझे ना, मैं रोज़ नहीं पढ़ सकती, मेरे को ऐसा हो रहा था, मुझे ऐसा लगता था until I started it. मुझे लगता था मे बी आई एम नॉट समवन हु कैन स्टडी रोज़. आई डू स्टडी इन लाइक बर्स्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसमें मेरे को यही था कि आई थिंक today only I was studying linguistic relativity. Yeah, so basically it says that language shapes the worldview of the people or the individuals. So I think the very name that I kept of this challenge, showing up ही मुझे बहुत मोटिवेट किया. और showing up में जब मेरा मन नहीं करता था तब मैं बस 5 मिनट के लिए शो अप करती थी, पर वो 5 मिनट कैसे 3 घंटे बन जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता था. सो अपनी लैंग्वेज, अपनी वाणी को अच्छा रखो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए. तो येस, दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम मी. सो या, not me but my experiences, okay. So I do feel very very light. Basically the thing is that my self-worth always depends upon how productive I am. You can call this my toxic trait, and if someone's out there who knows astrology, I am a cancer कह रही हूँ, केप्रिकॉन मून. अब केप्रिकॉन मून मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता जाके ChatGPT कर लो. सो बेसिकली इसलिए ये प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मेरे को जब तक मैं प्रोडक्टिव नहीं होती ना तब तक मैं खुद के बारे में अच्छा फील नहीं कर पाती. इफ़ आई एम बेड रॉटिंग, इफ़ आई एम स्क्रोलिंग रील्स एंड ऑल ऑफ दैट, तब मुझे शायद सेटिस्फैक्शन मिल रही हो, पर जितनी सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ के काम करने में मिलती है वो डबल ही होती है, ठीक है. तो एक तो ये चीज़ है. इमोशनली थोड़ा लाइट भी फील हो रहा है, एंड आई एम नॉट कर्सिंग माई सेल्फ ज़्यादा, और अपने आप को मैं फोर्स भी नहीं कर रही हूँ, एंड आई एम जस्ट टेलिंग माई सेल्फ जैसा यू जस्ट हैव टू शो अप, दैट्स इट. तो वो डिफरेंस क्रिकेट हो रहा है. डेफिनेटली इट्स वर्किंग आउट, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी happy with the amount of hours I've put in this week,
बट द टोटल अमाउंट ऑफ आवर्स दैट आई हैव पुट इन दिस वीक आर ऑलमोस्ट 21 आवर्स 58 मिनट्स. अभी भी मुझे थोड़ी सी एक क्लास और करनी है, तो आप 23 तक ले सकते हो, जबकि मेरा टारगेट है 48 एवरी सिंगल वीक. सो तो वो टारगेट तक रीच करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे, एकदम से ओवरवेल्म नहीं करेंगे, ठीक है. तो एक ये चीज़ है. अब मुझे बात करनी है अबाउट सो बेसिकली मेरे वीक में मुझे क्या क्या हेल्प करा. फर्स्ट थिंग, डोपामीन लोडिंग वाली वीडियो जिसने नहीं देखी, गो चेक इट आउट. आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन द लास्ट वीडियो. Please go and check out that video, please. It is actually very very good, and I applied it to my life and I've seen differences, so you guys can check out that too. Second thing is that I'll set realistic targets now, because I'll show you guys my targets from this week. ये है मेरे targets. ये बेसिकली मैंने इतने भर के टारगेट्स डाले एज इफ मैं रोज़ 8 घंटे पढ़ रही हूँ. तो ये इतना बड़ा मिथ ही मेरा आज ब्रेक हुआ है कि रोज़ अच्छा नहीं होगा, रोज़ 8 घंटे नहीं हो सकता, पर हाँ रोज़ एक बेयर मिनिमम ज़रूर हो सकता है. तो अब मेरे नेक्स्ट वीक के टारगेट उस बेयर मिनिमम को मद्देनज़र रखते हुए ही मैं रखूँगी, ठीक है. सो दैट इज़ वन थिंग. अब मुझे बात करनी है, रियलिस्टिक टारगेट्स हो गया, डोपामीन लोडिंग हो गया, और हाँ आज मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ट्राई करी. सो टुडे व्हाट आई ट्राई टुडे वाज दैट आई सॉ एन इंस्टाग्राम रील बाय अ यूपीएससी वेटरन ओनली. इन दैट रील बेसिकली एक सेकेंड ऐसी कुछ एडवाइसेस होती है ना, या फिर कभी कुछ आपके लिए कुछ वर्कआउट कर जाता है, ये ना आप खुद ही फिगर आउट करते हो कि आपके लिए कैसे वर्कआउट कर रहा है, क्या वर्कआउट कर रहा है, क्या नहीं वर्कआउट कर रहा. सो बेसिकली दिस यूपीएससी वेटरन whom I saw on the reels said कि देखो, फर्स्ट स्टेप इज वट एवर एग्जाम यू आर एक्चुअली गोइंग टू टारगेट, just first realize how much hours do you need to put in every single day in order to achieve that target. तो सपोज यूपीएससी का नॉन नेगोशिएबल है 8 आवर्स, ठीक है. अब 8 आवर्स तुम्हें देने हैं हर दिन. 8 hours work you have to do. Just don't treat it like studying. Like, this is what I do. I don't treat my exams like studying. I don't treat my studying like work. I don't treat my studies like just studies. I treat them more like work. So I get up, I get ready, I put on my favorite perfume, I put on my favorite clothes, and I sit as if I'm working for some corporate or something. And this is something that me and my best friend also used to share, that this thing actually works out. So it works out for me. If it works out for you guys, then that's great. So yeah, that's one thing. And उसके आपने अपने hours देख लिए कि कितने चाहिए. 8 hours, ठीक है. 8 hours या तो आप 3-3-2 में दे दो, या फिर आप 2 के 4 slots दे दो, ठीक है. For what works out for me is that completely depends on how much you can sit in one go. I can sit for 2 hours in one go, and someone else can also sit for like 3 hours in one go. It is completely subjective. So अगर मैं अपना example लूँ, I'm sitting for 2 hours every single day, 2 slots, ठीक है. उसमें अब उन slots में क्या करना है. अब second step ये होता है कि they say that eat the frog first in the morning, ठीक है. ईट द फ्रॉग से मतलब है डू द हार्डेस्ट टास्क इन द मॉर्निंग. अब मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपना हार्डेस्ट टास्क निकालती हूँ, मेरी तो मोटिवेशन वहीं लो हो जाती है कि भाई देखो, उनका भी रैशनल ठीक है कि सुबह उठ के माइंड इज क्लियरर, यू डोंट इतना दिमाग नहीं चलाते कि ये करना है, तो आप कर लेते हो. पर मैं तो सुबह उठ के मेरे को रात से टेंशन होने लग जाती है. हाय सुबह इतना मुश्किल टास्क करना है मेरे को. देखो, जैसे मेरे लिए मुश्किल टास्क है एक्टिव रिकॉल. मैं जब करती हूँ तब मुझे बहुत मज़ा आता है, पर उससे पहले की जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो बहुत डिस्टर्बिंग होती है, ठीक है. तो मैं रात को सोचती रहती हूँ करना है, और फिर मैं सुबह उठती ही नहीं हूँ. सो ईटिंग द फ्रॉग डज नॉट क्वाइट वर्क आउट फॉर मी, ठीक है. पर इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने इस बार देखी इस रील में. उन्होंने बोला कि आप हर स्लॉट में जो आपका फर्स्ट टास्क होता है ना, उसको मेक इट द हार्डेस्ट टास्क दैट यू डू, ठीक है. जैसे टुडे व्हाट आई डिड वाज कि आई हैव पुट इन लाइक 2 slots टिल नाउ. तो उसमें द फर्स्ट टास्क आई डिड वाज एक्टिव रिकॉल ओनली, एक्टिव रिकॉल एंड माई सेल्फ स्टडी वाला पार्ट, ठीक है. तो उसके बाद फिर मैंने करी अपना लेक्चर फॉर 1 hour, ठीक है. अब मैंने ये बहुत बार मेंशन किया दैट
watching lectures is quite exhaustive for me, and I don't really like watching lectures बहुत ज़्यादा. Self study is something that I enjoy, तो उसमें टाइम पता भी नहीं चलता है, ठीक है. तो मैंने अब जैसे वो किया ना, तो मुझे लग रहा है कि यार वाओ, मैंने तो अभी तक कुछ ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की, मुझे इतना फील नहीं हो रहा है वो. तो आई होप यू गाइज गेट इट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. यू गाइज कैन, मतलब आपको स्लॉट में भी स्लॉट बनाने हैं, ये है क्रक्स. तो इफ़ इट वर्क्स आउट फॉर यू, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो टुडे. एंड अच्छा, मैंने कल का टाइम तो बताया नहीं. आज का ऑलमोस्ट 3 hours 45 ऐसे मिनट्स हो रहा है. अभी ये 1 more hour will go on. ये मैंने कल भी बोला था, पर कल मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करी थी, पर आज मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि कल संडे है. And yesterday it was 3 hours 45 minutes something. So yeah, that's it for this video today. If you guys like this video, please let me know in the comments down below. And नहीं भी let me know करोगे तो मुझे कुछ नहीं है. All this is just for future Jessica to watch, and it's just me documenting my journey here on YouTube, and me being accountable to 2-3 people who watch my video every single day. So yeah, that's it for this video today, and I'll see you in the next video. Bye bye and Jai Hind.